biggest South Asian media group, Y Media. वाई मीडिया ग्रुप वालों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਿਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦ ਫਿਊਚਰ ਹੋਲਡ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UAE ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਥੈਂक्स ਅ लॉट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सो मैं अजीज़ी साहब सीधा आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं इतनी ज़रूर जिक्र कर दूं कि प्रोग्राम में उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश 4 लैंग्वेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेझिझक आप अपना उर्दू में अपनी बात कर सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सो मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इस पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं कि रिगिंग हुई है और आर्मी के जो जनरल्स हैं, क्योंकि सारे नीचे तो, क्योंकि अगर मैं अकेली आर्मी कहूँगा तो फिर वो जो फौजी है वो तो दोनों तरफ से आपको बताओ तो बॉर्डर पर लड़ रहा है, उनका तो अपना काम है। आर्मी जनरल्स पे एलिगेशंस हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भी रिगिंग करते रहे हैं। और मैं देख रहा था मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी साफ ही कह दिया कि ये तो अपनी सीट नहीं जीत, मतलब इशारा कर दिया उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ कि आओ अपोजिशन में बैठे हैं तो 2 में से 1 सीट वो नहीं जीत रहे हैं, जो PTI भी कह रही है। सो पहले ये क्लैरिटी दें, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई धांधलियाँ नहीं हुई। और आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं वो भी देख रहा था, तो उसमें वो कह रही थी कि भाई ये US, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन ये जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं कि रिगिंग हुई और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ये गलत है। पाकिस्तान की इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है। मैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाता, आपसे सवाल सीधा पूछता हूँ कि क्या लोगों को जिताया गया है, हराया गया है, क्या ये इलेक्शन सही हुए हैं नहीं हुए, जरा इस पे पहले एनालिसिस दें। ठीक, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये एक परसेप्शन है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। अच्छा। और यही वो फ़र्क है जो हिंदुस्तान की ग्रास रूट जो इनग्रेव्ड हुई हुई डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में अपरूटेड डेमोक्रेसी का जो फ़र्क है वो यहाँ से पता चलता है। आप दिहाइयों का एनालिसिस उठा के देख लें, हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं और कभी इस किस्म की बातें नहीं आती। अगर आती भी हैं तो वो उसको सेटल कर लिया जाता है किसी जगह के ऊपर, कोई छोटे से प्लेटफॉर्म पे कोई छोटी मोटी शिकायतें आती हैं। जब इतने बड़े मुल्क के अंदर एक कंटिन्यूएशन होती है डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, तो ये सारे मामला जो हैं वो सर नहीं उठाते और इदारे मजबूत हुए होते हैं। अनलाइक पाकिस्तान में सिचुएशन डिफरेंट है। हम लोग चूँकि बिल्कुल रिसेंट पास की बात करते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि जी ये सब कुछ तो अभी हुआ है। पाकिस्तान में 70 से यही कुछ होता चला आ रहा है।
पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन आज तक इस एलिगेशन से आरी नहीं है कि इसमें रिगिंग नहीं हुई। हर इलेक्शन के बाद यही होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो कहती है इलेक्शन ठीक हुए हैं, जो हार जाती है वो ये इल्ज़ाम दूसरी पार्टी को लगाती है। जहाँ तक फ़ौज का किरदार है, फ़ौज एक कांस्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, बाकी सारी चीज़ वेरिएबल है। तो फ़ौज ही ये फैसला करती है कि किसको लाना है और किसको ले जाना है। ये फैसला आज से पहले भी होता रहा है, ये फैसला पिछली हुकूमतों में भी होता रहा है, ये फैसला आज की हुकूमत में हुआ है। नथिंग इज़ न्यू, कोई चीज़ नई नहीं हुई है जिसके ऊपर हमें हैरत का इजहार करना चाहिए कि जी ये बहुत कुछ ऐसा नया हो गया है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक बात है इदारे की कि हम आर्मी क्यों बोलते हैं, आर्मी 4 जर्नैल ये फैसला करते हैं, वो 4 जर्नैल ही लीड करते हैं, पूरी फोर्सेस उनको सपोर्ट करती हैं, इसलिए हम आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आर्मी जर्नैल का नहीं करते, क्योंकि इदारा तो जर्नैल की सुनता है, तो जर्नैल जिस तरफ चाहता है वो लेके चले जाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि जो लोग पहले पसंदीदा थे वो अब नापसंदीदा हो गए हैं, जो पहले नापसंदीदा थे वो बाद में पसंदीदा हो गए थे, तो उनको लेके आगे गया था। इस बार भी हुआ है। जहाँ तक फजलुर रहमान की बात है, फजलुर रहमान साहब को उस हिसाब से हिस्सा नहीं मिल सका जिसकी वो तलबगार थे। मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही बात मैं एक सेकंड यहाँ रोकना चाह रहा था आपसे। मैं ये जानना चाह रहा था हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं। आज मैं ज़रा आप दोनों का, इमरान साहब का और अजीज़ी साहब आपका ज़रा फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ। इमरान साहब से भी पूछेंगे। अजीज़ साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी की कि पहले जो लोग सीधी बात करते हैं कि पहले इमरान खान साहब को लेकर आए, ऐसी एलिगेशन है। हालांकि इमरान खान साहब के समर्थक, आप जानते हैं उनको भी हमारे वहाँ बैडमिंटन मोहम्मद अशरफ साहब वो भी उस दिन कह रहे थे कि नहीं युद्धवीर पाजी ये गलत है, वो अपने दम पर आए थे 2018। एनीवेज, तो आपने भी कहा कि पहले इमरान खान साहब को लेकर आए, अब वो नापसंदीदा हो गए, अब ये लोग हैं, ये पहले पसंद नहीं थे, जेल में बैठे थे, ठीक है। तो ये क्या मतलब क्या हुआ, क्या हमारे दर्शकों, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट, उनको जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मैं आपके खास करके जो लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया के लोगों को खास करके एड्रेस करके ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी। नवाज शरीफ की पॉलिसी रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी। उस वक्त जिस वक्त इतनी पोलराइजेशन पॉलिटिकल बढ़ी हुई थी, नवाज शरीफ उस हालात में मोदी साहब की वालदा को अपनी वालदा समझकर उनको सारी के तोहफे दे रहे हैं और उनको जाके मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि हम नेबर हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, गरीबों के लिए दोनों मुल्क मिलके काम करते हैं। अगर ये बात इस तरीके से कर दी जाए तो ये बेसिकली डायरेक्ट लात पड़ती है आर्मी के पेट पे, माजरत के साथ। ये चीज़ पसंद नहीं आई फौज को, ये बात नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी दुकान उस वक्त चलती है यहाँ जब तक के कॉन्फ्लिक्ट हो। ये हर ग्रास रूट के लेवल पे एक आम शहरी बेचारा जो शायद स्कूल तक की रसाई भी हासिल ना कर सका हो किसी भी मुल्कों में, वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ये कहाँ से ये सिलसिला ट्रिगर होता है। तो नवाज शरीफ ये नापसंद हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, चूँकि आर्मी ये कहती है कि आपको जितना डोमेन दिया गया है पॉलिटिकल, आप इसमें प्ले करें, आप फॉरेन पॉलिसी हम अपने पास रखेंगे, आप उसमें मत जाइए। इन्होंने कहा कि भाई पीएम असल में मैं हूँ, तो डिसीजन मुझे लेना है तमाम आगे के फैसलों के लिए। मैं अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकता, नेबर किसी मुल्क के चेंज नहीं होते, तो हमें हारमोनी और पीस के साथ रहना है, आगे बढ़ना है। ये उस वक्त की पॉलिसी नहीं थी। तो नवाज शरीफ बुरे हो गए, वो अपनी डोमेन से आगे जाके खेल रहे थे। जी जी जी। ये जनरल बाजवा, इससे पहले आप हमीद गुल से शुरू कीजिए, उन्होंने एक थर्ड फोर्स बनाना शुरू की कि भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने मोनोपोलिस्टिक जो है वो इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारे लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं, एक नई फोर्स को लाया जाए। तो वो एक नई फोर्स लेकर आए, एक नई फोर्स ट्राई की। जब वो नई फोर्स ने जान पकड़ना शुरू की और जब उन्होंने फुट डाउन किया और इमरान खान ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, मैं जाऊँगा सऊदी अरब, मैं जाऊँगा मलेशिया, मैं जाऊँगा टर्की और मैं डिसाइड करूँगा कि किससे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, किससे नहीं होने चाहिए, तो उसके ऊपर फिर एतराज़ उठा दिया गया। तो मकसद कहने का ये है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने फुट डाउन किया और बात की कि जी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, फैसले पार्लियामेंट करेगी, प्राइम मिनिस्टर इज द ऑथराइज एन इलेक्टेड वन, रिप्रेजेंटेटिव है आवाम का, वो फैसले करेगा, वहाँ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सिंपल इज। अच्छा, ये तो बात हो गई जी पुराने दौर की।
आज के दौर में मैं सीधा इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपका क्या कहना है? उन्होंने तो अजीजी साहब ने तो कह दिया साफ कि जी ये इलेक्शन 70 के बाद कभी पाकिस्तान में बिना रिगिंग के, बिना धांधली के इलेक्शन हुई ही नहीं है। आपका क्या कहना है कि इस बार धांधली हुई है कि फेयर हुई है इलेक्शन? नहीं, इस तरह बिल्कुल धांधली हुई है भाईजान। अजीज़ भाई का जो कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि धांधली के अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हमारा जो मुल्क है, बीइंग पाकिस्तानी, हम दो भाई पाकिस्तानी बैठे हुए, सो द थिंग इज़ लाइक जो पाकिस्तान में जो इस टाइम हो रहा है और होता आ रहा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू बेसिकली अगर आप अगर पुराने 70s से देख लें, अगर 70s में अगर आवाज़ निकाली थी तो बेसिकली उस क्या नाम था उसका, मुजीबुर रहमान। अब हमारे हिस्ट्री के अंदर मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा गया है, ठीक है। मुजीबुर रहमान ने जो जिस तरह आवाज़ उठाई थी बिल्कुल एग्जैक्टली इमरान खान ने भी वही आवाज़ उठाई थी, क्यों? बिल्कुल। सो एग्जैक्टली उस वक्त भी हमें प्रॉब्लम क्या थी कि उस वक्त मीडिया ज़्यादा मतलब इन नहीं था, लोगों को आइडिया नहीं था, ठीक है। उस वक्त एक रेडियो पाकिस्तान होता था, रेडियो और टीवी पाकिस्तान होता था, उसमें जो वो लोग जो आर्मी बेसिकली आर्मी शुरू से ही इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रही है, तो पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही, ठीक है। जो भी एक बंदे को वहाँ पे ला के रखा जाता है, एक पपेट को, अब उसे पपेट, ठीक है ना, एक मतलब ठीक है, मतलब हर जगह पे मतलब जो हर मुल्कों में बेसिकली आप उसे कि जो लोग मुल्क चलते हैं वो आपकी बेसिकली बैकग्राउंड से हल्के फुल्के आपको मिलते हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मकसद ये है, ब्यूरोक्रेट्स के मुल्क चलाते हैं, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन वो देंगे, सारा आपको डायरेक्शन देंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, अब पाकिस्तान में जो है वो फौज ऑल इन ऑल है, ठीक। अब मैं फ़ौज के बारे में आपको क्या कहूँगा, फ़ौज में फौजी फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब जितने भी इंडिया के दर्शक हैं या जो भी नहीं जानते पाकिस्तान के बारे में, अगर आप पाकिस्तान के बारे में देखें, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी आर्मी स्कूल, आर्मी हॉस्पिटल्स, आर्मी फैक्ट्रीज, ठीक है ना, और डिफेंस कॉलोनीज, ठीक है। कहाँ आर्मी इन्वॉल्व नहीं है? मुझे एक बात बताएं, अगर इमरान खान को, या एब्सोल्युटली राइट, 2018 का जो इलेक्शन था वो बेसिकली रेगिंग्स हर इलेक्शन में हुई है। और कौन सा इलेक्शन है सर कि जो सा किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को 5 साल पूरे करने दिए गए हों? अजीज भाई मेरे ख्याल से तो आज तक 5 साल नहीं पूरे हुए होंगे। पार्टी ने पूरे किए हैं, शख्सियत ने पूरे नहीं किए। यानी एक ही प्राइम मिनिस्टर को लेटर आपने क्यों नहीं मेरी मर्जी से लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइम मिनिस्टर को उठा के घर भेज दिया। और सिर्फ जब पीपल्स पार्टी जो थी, जैसा उन्होंने कहा, अपना टर्म पूरा किया पीपल्स पार्टी ने, पहली बार पीएम ने नहीं किया, वो बाद में राष्ट्रपति बन गए। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे क्या है कि जो इनडायरेक्टली जो जितने भी फैसले वो सब आर्मी करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट आर्मी, ठीक है ना। आई ऑलरेडी सेड दैट आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है ना। आई एम नॉट बेसिकली, मैं किसी भी पार्टी को प्रेजेंट नहीं कर रहा, ना पीपल पार्टी को, ना बेसिकली पीटीआई को, ना पीएमएल नून को या पीएमएल क्यू को, जो भी है, बट नो आई एम ओवर हियर एज अ वॉइस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। अगर एज अ पाकिस्तानी आप उससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आपके यहाँ इंडिया में कहा जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, वो क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह साहब, ठीक है। मनमोहन सिंह साहब अगर आए, अगर आप देखें जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके टाइम में कितनी ज़्यादा इंडिया ने ग्रोथ की है। ऐसा आप इंडियन हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने फॉलो किया है कि वो इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ की है, ठीक है ना। उसी के साथ जब परवेज़ मुशर्रफ आया था, ठीक है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर आर्मी के बारे में कहा जाए, जब वो डिक्टेटर था, उसने मार्शल लॉ लेके आया, ठीक है ना, उसने आर्मी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई, ठीक है। और कारगिल का जो उस वक्त जो भी उस वक्त मतलब जो इवेंट हुआ था, वो किस खाते में हुआ, फॉर व्हाट रीज़न, ठीक है। इतनी जानें ज़ाया गई, वो किस खाते में, ठीक। वो कौन उसका आंसरेबल है? ना इंडियंस आंसरेबल है, ना पाकिस्तानी आंसरेबल्स हैं। हमारे जो जवान जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो इवन के इंडिया के, पाकिस्तान के, वो किस खाते में गए, ठीक है। वो आज तक उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था,
ठीक है ना। और ऑन टॉप ऑफ इट अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ जब आया पाकिस्तान, जब इक़्तिदार में आया, उसने एक काम अच्छा किया था एज अ डिक्टेटर, ठीक। पाकिस्तान में उसके आने के बाद कोई भी काम हाँ इमरान खान ने किया था। लेट मी फिनिश परवेज़ मुशर्रफ एंड देन आई कैन कम टू बैक टू इमरान खान। परवेज़ मुशर्रफ इनके ज़माने में जब जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि मीडिया आज़ाद हुआ। मीडिया जब हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद हुआ, सेल फोन कंपनीज आई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी काम हुआ था उस वक्त, ठीक। और ऑन टॉप ऑफ इट हमारे यूनिवर्सिटीज़, परवेज़ मुशर्रफ ने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इन की थी, ठीक। मेरे यहाँ 2 दोस्त थे, स्टेट्स में रहते थे, वो वहाँ पे यहाँ पे प्रोफेसर काम कर रहे थे, वो ये अपना सब कुछ वाइंड अप करके पाकिस्तान चले गए, बिकॉज उनको वहाँ पे अच्छी तनख्वाहें मिली हैं। कि परवेज़ मुशर्रफ ने लानिया कहा था कि अगर कहाँ यहाँ पे कोई भी बंदा अगर आएगा जो बाहर का ग्रेजुएट है और आके हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, आई विल गिव देम गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। और वो हुआ और पाकिस्तान ने तरक्की की। मैं उसमें नहीं जाता कि परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया क्या नहीं किया। वो उस ज़माने में जो ड्रोन अटैक्स हुए, सारा कुछ हुआ, ही इज़ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने, बिकॉज ऑफ दोज ड्रोन अटैक्स, अमेरिका ने सारा का सारा जो जितना का था वो आपका कर्जा था वो माफ़ कर दिया। सो पाकिस्तान वॉज डेफिसिट फ्री एट दैट टाइम। उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं था परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे। परवेज़ मुशर्रफ ने जितने भी ड्रोन अटैक्स करवाए हैं अफगानिस्तान में, ठीक है, वो उसका मेन मकसद क्या था कि ही इज़ पार्ट ऑफ दैट, वो जो कोलिजन अपनी आपकी जो आर्मी के जो बना था आपका एक अलायंस जो बना था बेसिकली। सो उस अलायंस के अंदर जो पाकिस्तान ने फुल एडवांटेज उठाया और अपने सारे कर्जे माफ़ करवा लिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि जी जब पीपल पार्टी आई और फिर पीपल पार्टी के बाद नून लीग आई, पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया। आपके जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया को काफ़ी आगे लेके चले गए, ठीक है। और तरक्की पे तरक्की होती गई, ठीक है ना। मोदी साहब आए, मोदी साहब ने भी ठीक है, हर एक अपने डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन मोदी इज़ डूइंग रियली गुड जो हम देख रहे हैं अगर एज उसको देखा जाए। जब पाकिस्तान में इमरान खान, यहाँ मैं 1 सेकंड रुकूंगा आप इससे पहले कि इमरान खान साहब की तरफ बढ़े। आप दोनों से ये सवाल है, इस पर 1 मिनट ले, फिर आप आगे बात अपनी जारी रखना। आपने अभी एक बात स्टेटमेंट की, आपने कहा कि मोदी इज डूइंग रियली गुड फॉर इंडिया, ठीक है। मैं ये जितने भी पाकिस्तान के अब लोगों से मिलता हूँ यहाँ पर और वहाँ जितने पत्रकारों से भी मैं सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि मोदी जो है वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये क्यों ऐसा परसेप्शन आया, क्या कारण है इसका? देखिए आपकी बेसिकली अगर जनरल बात कर रहा हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा और ना ही मुझे डेप्थ का इतना पता है, मैं उसमें नहीं आता। जिस तरह आपके वो जो फार्मर की स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, सारा कुछ, I'm not debating on that thing। मोदी जनरली मोदी का जो सबसे अच्छा जो काम मुझे लगा था, जितना ब्लैक मनी इंडिया के अंदर पड़ा हुआ था ना, मोदी ने उसको बाहर निकाला, ठीक है ना। या तो वो कनाडा आ गया या वो बिकॉज ऑफ डिवेलुएटिंग आपका जो नोट था, नोटबंदी। तो वो जो नोटबंदी जो हुई है उसमें उसने काफ़ी लोगों को मतलब वो ओपन किया है कि हाँ भाई ये लोग जो हैं जो जी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, हाँ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर वगैरह। मैं वैसे आपकी बात को 1 मिनट के लिए आगे बढ़ा देता हूँ और अजीजी साहब से पूछना चाहूँगा। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि होता क्या था पहले, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया के भी जो मेन लीडर्स होते थे, आज भी चीफ मिनिस्टर्स, 6 चीफ मिनिस्टर्स, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि उन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं आज भी। लेकिन पहले 6 नहीं होते थे, पहले 20 प्लस होते थे। हमारी अगर 20 प्लस स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होते थे उन पे कोई ना कोई छापे पड़ रहे होते थे और एट एनी गिवन टाइम 4-5 चीफ मिनिस्टर हमारे जेल के अंदर हुआ करते थे करप्शन में। और जो ऊपर हाईएस्ट लेवल था उस पर भी एलिगेशंस, मैं वर्ड एलिगेशन यूज़ करूँगा, एलिगेशन लगे होते थे। अच्छा, ये जो पहले तो आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 10 साल तक वो रहे, मतलब ठीक है उन पे कोई क्वेश्चन करे ना करे, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से वो पढ़े हुए हैं, उनका जो अपना एक स्टाइल, नॉलेज वर्ल्ड बैंक से लेके यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया में। ओबामा साहब ने कहा कि आज हमें इकोनॉमिक दिक्कत आती है, साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं, तो ये हम इनसे पूछते हैं जी क्या किया जी। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन वो एक कद था उनका, और करप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब कि अपने आप अपना कोई कार्ड भी लेना, कुछ करना, मतलब वो बिल्कुल सादा इंसान, वो जो पुराने 1947 से पहले वाले लोग होते थे ना, उसका एक रूप है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ऊपर से
फिर आ गए, इसके बाद मोदी साहब आ गए। अब मोदी साहब पे कई तरह के एलिगेशंस लगे हैं, चाहे वो गुजरात की हम बात करें, मैं वर्ड एलिगेशन यूज़ करूँगा, हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन यस, जो करप्शन की बात है वो एलिगेशन इन पे भी नहीं लगा, ठीक है, ना एज ए चीफ मिनिस्टर लगा, ठीक है, ना एज ए प्रधानमंत्री लगा। तो वो जो ऊपर से अभी एक थोड़ा सा वो है, तो वो एक मुझे लगता है कि यस वो चीज़ एक फ़र्क है। अजीज़ी साहब आपका विचार? आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। बात ये है कि आपके जो पुराने प्रधानमंत्री साहब थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कद काट, जो उनका स्टैचर था, उसको मैच करने के लिए हम मोदी से आप प्लीज़ उसको मैच ना करें, ये ज्यादती है, जुल्म है ये। इंडिया की कौम के साथ भी जुल्म है। वो बहुत ही डिफरेंट स्टैचर के इंसान थे और उनका काम कंक्रीट ग्रास रूट लेवल पे था और वो पूरी नेशन के लिए था। मोदी साहब की मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये मीडिया इनके कंट्रोल में है और उनको ग्लोरीफाई उस तरीके से किया जाता है। मोदी साहब ने काम ज़रूर किए होंगे मगर सर्टन पॉकेट्स में किए हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें उनके काम कंट्रोवर्शियल हैं। तो मोदी साहब को अगर पेंट करें तो प्लीज़ मोदी साहब को, उनको हम पल्ला ना बनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के। यस, मोदी साहब के काम हैं, छोटे मोटे काम उनके नजर आए, बट अगेन कैपिटलिस्ट को और कैपिटलिस्ट बनाना, आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि कैपिटलिस्ट से की जेब से पैसा निकाल के नीचे फ्रंट ग्रास रूट के ऊपर लेकर आए हो, जो स्लम इम्प्रूव हो गया हो। तो उस लेवल के जो काम थे वो नज़र नहीं आए। तो कॉस्मेटिक वर्क ज़्यादा है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत है, जिसकी वजह से एक परसेप्शन बना दी गई है। बट मनमोहन सिंह के ज़माने में जो इंडिया की ग्रोथ थी, जो काम हुए हैं और मासेस तक उसका बेनिफिट पहुंचा है, वो अनपैरेलल है। ठीक है। और लेकिन ये मेरा सवाल ये था कि मोदी साहब का मतलब ये जो इम्प्रेशन है वो चेंज पाकिस्तान से, मैं ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ जाहिर साहब कि वहाँ पर क्यों इतना, क्योंकि पहले तो उनके बिल्कुल खिलाफ होते थे ज़्यादातर लोग वहाँ से। नो डाउट नवाज शरीफ साहब ने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जो हमें अंदर की खबर है और काफ़ी हद तक वो ठीक भी लगती है, काफ़ी हद तक 99% मैं कह सकता हूँ, 100% कोई बैठा नहीं था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फौज के जो जनरल है बाजवा साहब, वो पूरी तरह उन्होंने मैनेज कर लिए थे और आज भी काफ़ी हद तक मैनेज है। मतलब ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो आज वो यूएई में जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वो खबर बहुत पहले मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल एक अखबार में पढ़ी थी, हमने बहुत पहले दे दी थी खबर ये कि मोदी साहब जाएंगे, बलूचिस्तान में मंदिर का उद्घाटन होगा। पूरी तरह बात मैनेज हो गई थी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में खुलासा किया, शाह महमूद कुरैशी ने खुलासा कर दिया था बाद में तो आके कि मैंने कहा दिया नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और कश्मीर पे भी उन्होंने कह दिया था कि हम अपना स्टैंड बिल्कुल पीछे ले लेंगे। असल में शाह महमूद कुरैशी साहब को या इमरान खान साहब की सरकार को इस पर कोई इतराज़ नहीं था कि मोदी साहब पाकिस्तान आएँ, बलूचिस्तान में मंदिर का उद्घाटन करें, क्योंकि ये आज कल में ये गोली चली है दोबारा से, ये फिर चल गई वैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर, वरना बीच वैसे तो पहले चलती, वरना बीच में तो सालों साल गोली नहीं चली कभी। इंडिया की चाइना से लड़ाई हुई, इंडो पाक बॉर्डर पे तो गोली चलनी बंद हो गई, नो फायरिंग एट ऑल। आप देखिए अभिनंदन वहां गए हैं, वहां से वो वापस ले आए हैं, ठीक है। तो जो इंडिया पाकिस्तान का आपस में जो रिलेशन इन्होंने मैनेज किया था वो एट अ हाईएस्ट लेवल इन्होंने आपस में मैनेज कर लिया। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि आज आप मिडल ईस्ट में देखिए 7 कंट्रीज जितनी मेजर हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, सब ने उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हुए हैं। जब बहरीन ने अवार्ड दिया तो हमने खबर नहीं लगा, बहरीन छोटी सी कंट्री है, उन्होंने कहा यार मोदी साहब को तो जब मिडल ईस्ट जाते हैं उनको तो समझ नहीं आ रही होती कि सारे तो अवार्ड दे चुके हैं, वो अवार्ड बचा कौन सा है। प्रोटोकॉल तोड़ के जाके एयरपोर्ट में रिसीव करते हैं वो लोग उनको, ठीक है। अब ये 8 जो इंडिया के नेवल एक्स सर्विस ऑफिसर थे, वो उनको सजाए मौत थी, उनको वहाँ से छुड़ा के ले आए, पहले फांसी मार, मतलब एसपी ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, जासूसी का एलिगेशन है वो भी इजराइल के लिए, तो बहुत बड़ा एलिगेशन था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये इतना डिफरेंस जो है वो कैसे आ गया, और फिर हम वापस पाकिस्तान इलेक्शन पर मैं आना चाहूँगा। मैं थोड़ी सी इसके अंदर सरकास्टिकली कुछ आपको जो है ना वो उसके अंदर कुछ ऐसे फिनोमेना डिस्कस करता हूँ जो कि आम अंदाज में टीवी पे या आम बोलचाल में डिस्कस नहीं होते। प्लीज़ देखिए, हुआ ये कि जब मोदी साहब आए ना, उनको मालूम था पाकिस्तान की फोर्सेस पीछे से बैठ के वो देख रही थी, उनकी ये होप थी। जब आप देखिए क्लास के अंदर जो सबसे शरारती बच्चा होता है और टीचर ये समझती है कि ये शरारती बच्चा पूरे क्लास को जो है ना वो शरारत पे उकसा रहा है,
तो वो क्या करती है, उस बच्चे को कहती है कि कल से तुम इस क्लास के मॉनिटर हो, तुम पे ये जिम्मेदारी है कि तुम इस क्लास को मैनेज करोगे। जब उसको जिम्मेदारी मिलती है ना, उसको ये पता होता है कि मैंने ये रोल अदा करना होता है, तो सारी क्लास बिहेव करना शुरू हो जाती है। मोदी साहब एक एक्सट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोदी साहब का वो रोल था कि अगर मोदी साहब को नेगोशिएशन टेबल पे ले आते तो यहाँ पर पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन थी कि कश्मीर पे सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकती है। बल्कि जिस वक्त इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मोदी इलेक्ट हो जाएगा तो हम उनसे बैठ के बात करेंगे और नतीजा यहीं से निकलेगा। तो चूंकि बाकी कांग्रेस के अगर फैसले हो भी जाते तो बीजेपी एतराज़ उठाती, और अगर बीजेपी को ही टेबल पे बैठा लिया जाता और किसी नतीजे पे पहुंच जाते उनके साथ, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती। ये वो फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड हो गई थी। मगर होता ये है कि जिस वक्त एक जनरल चला जाता है, दूसरा जनरल आता है, तो वो जब आता है तो वो अपनी पूरी टीम और अपना एक पूरा विजन और एजेंडा लेकर आता है, उसके बाद वो फॉलो हो रहा होता है। यही हुआ कि जब आपकी टॉप ब्रास चेंज हुई, दूसरी टॉप ब्रास आई, तो शायद उनकी प्रेफरेंस ये नहीं थी जिसकी वजह से ये मामलात आगे चल नहीं सके। वरना सिलसिला तो मुशर्रफ के दौर में भी शुरू हो गया। बात सुना कि सिर्फ साइन करने की हद तक रह गई थी, बाकी तो सारी बैक टेबल डिप्लोमेसी चलती रही है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। तो बेसिकली मोदी साहब को कश्मीर के हवाले से एक मसीहा के तौर पे पाकिस्तान में परसीव किया जा रहा था, जो कि शायद बाद में आने वाली पॉलिसी में ऐसा नहीं रह सका, जिसकी वजह से पॉलिसी शिफ्ट आप देखते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं जी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को आप आगे किस लिहाज से देखते हैं अजीजी साहब, कहाँ किस दिशा में जा सकते हैं? ये जो नई अब जो सेटअप बन रहा है, इसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में कोई सुधार होगा कोई? जी सर, देखिए बात ये है कि एक एक बच्चा शायद हिंदुस्तान का और एक एक बच्चा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा आपस में कोई डिफरेंसेस आवाम की सतह पे है नहीं। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो उनको सर के ऊपर आंखों की पलकों पे बिठाया जाता है। जी। पाकिस्तान से इंडिया कोई चला जाता है तो वो बाज़ारों में शॉपिंग कर रहा होता है, तो उससे कोई दुकानदार पैसे लेने को तैयार नहीं होता। जी। ये मनाजिर हम देख के मतलब हमारे लिए कोई नई अचंभे की बात नहीं। बात है हुकूमती सतह पर, और जो हु इज़ कॉलिंग द शॉट। पाकिस्तान में आर्मी कॉल कर रही है। आर्मी का कहना यह है कि जी जब तक कश्मीर के ऊपर प्रोग्रेस नहीं होती बाकी मामलात नहीं हो सकते। हम ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई जहालत की अप्रोच है। आवाम का ये कहना है कि आप तमाम लेवल पे इंडिया के साथ इंगेज कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी लेवल पे इंगेज कीजिए। इंडिया बहुत ग्रो कर गया है, हम उससे पाकिस्तान एज अ नेशन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट्स हों, हर तरह हर सतह पर हम इंगेज करें। ये तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज साथ साथ डेमोक्रेटिकली दोनों लोग अपने जिस तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए बात करते हैं उसको चलाते रहें। आखिर ये फैसला होना गुफ्तगू के ही ज़रिए है। इंडिया जानता है कि वो पाकिस्तान को बम के ज़रिए, किसी गोली के ज़रिए कॉन्कर नहीं कर सकता। हमारी एक बड़ी उम्दा न्यूसेंस वैल्यू है इस रीजन में, हम छठी पावर हैं, ये हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लिहाजा ना वो गोली के ज़रिए हमसे कुछ करवा सकता है, ना पाकिस्तान गोली के ज़रिए कोई काम करवा सकता है हिंदुस्तान से। जो भी बात होगी प्यार मोहब्बत से होगी, आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और आगे चलेंगे। आवाम की यही राय है, आवाम एक दूसरे से प्यार करती है। हम आप यहाँ पर रहते हैं, आप एक दूसरों के बच्चों की शादियों में आते हैं, जाते हैं, साथ एक प्लेट पे बैठ के खाते हैं, तो हमें पीछे क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं जी। क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया ने यूएई के साथ, मैं वीडियोस भी आपको लगातार दिखा रहा हूँ, इंडिया ने यूएई के साथ जो रिलेशन बनाए, यूएई हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आज अगर पाकिस्तान की टोटल आप इकोनॉमी देखें, जीडीपी देखें, तो अभी 300 बिलियन टच नहीं की है जी। वो कर ली है 300 तो कर ली, 350 के करीब है। बात ये है कि और यहाँ पर वो 100 बिलियन अकेले यूएई से ट्रेड कर रहे हैं, कतर के साथ कर रहे हैं। प्लीज गो एट, सॉरी कुछ कहने लगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया के अंदर ये रिकग्निशन है कि इतनी ह्यूज मार्केट है इंडिया। अब आप 1 अरब 20 करोड़ की बात कर रहे हैं।
जिसकी सिर्फ मिडिल क्लास जो है वो 35 से 40 करोड़ के ऊपर है। तो आप अंदाजा कीजिए 35-40 करोड़ के तो दुनिया में मुल्क ही बहुत थोड़े से हैं, ये तो सिर्फ आपकी मिडिल क्लास है। तो आप इकोनॉमी का साइज देखिए, तो तमाम मुल्कों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हम ट्रेड कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, हार्मनी हो सकती है। और पाकिस्तान के लिए इंडिया से अच्छे दोस्ती, भाईचारा, आगे चलना इस पूरे रीजन को देखिए। हम कह रहे हैं कि आने वाली सदी एशिया की सदी है, चाइना आपकी जो है वो ग्लोबल पावर है, आपके पास रशिया है, इंडिया है। हम इस मुल्क में इस पाकिस्तान को आगे ग्रो कराना चाहते हैं, तो हमें 7 समुंदर पार हर वक्त अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें अपने ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढने चाहिए, हमें साथ हाथ मिलाना चाहिए और हर वो प्लेटफॉर्म जो कि अवेलेबल है इन मुल्कों को, चाहे आप ईरान से हेल्प लेना चाहें आप ईरान से हेल्प लीजिए। ईरान के इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पूरे यूएई के पूरे गल्फ बेल्ट के इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप इन तमाम फोर्सेस को अपने साथ मिलाइए और आके बैठ के जो है वो किसी भी सतह पे गुफ्तगू शुरू कीजिए, चाहे मीडिएटर चाहिए किसी भी जगह। बात यह है कि विल तो हो, बात यह है कि जो द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स पाकिस्तान में आर्मी पॉलिटिकल लोग तो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अजीज भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कॉल ले लो, कॉल तो लेते जाए फिर आपकी तरफ, साथ साथ कुछ कॉल्स भी लेते चले जाते हैं। एक कॉल फिर आपकी, फिर कॉल, ऐसे बारी बारी करते चले जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज स्वागत है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी युधिर जी, मैं इमरान साहब और जो दूसरे साहब हैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जी इमरान साहब, हाँ जी बैठे हैं जी, बिल्कुल सवाल पूछ लीजिए। ये दोनों से देखिए, ऐसा होता है कि आप लोगों ने बाकी सब कुछ किया, आपने अपने अंदर झांकी नहीं मारी कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। आपने क्या, आपकी पतन का कारण क्या था, आपने इसके ऊपर कभी अभी एक भी विचार नहीं आया आपकी तरफ से। आपके जो पतन का कारण है, आपका पतन का कारण है आपने अपने आप को। आपकी आवाज बीच में सर कट गई है, सर आपकी आवाज बीच में कट गई है, सॉरी आपकी आवाज सर बीच में कट गई है। आप दोबारा से कॉल कर लें, हमारी तरफ से हमारा तो 23 साल का रिकॉर्ड है, कभी लाइन नहीं काटते। अनिल जी आप दोबारा कॉल कर लें, ये ना को सोचे कि मैंने वो लाइन क्या भाई के क्वेश्चन क्या था? उनका सवाल ये था कि आपने अपने जी पतन मतलब होता है डाउनफॉल का कारण नहीं आपने अभी डिस्कस किया। आपके कहने से पहले ही मैं बता देता हूँ, वैसे वो फिर से पूछे, वो कहेंगे उनसे पूछ लो। उन्होंने बताया जी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी नहीं आई, हमारी फौज जो है उसने हमेशा पावर में रही है, वो नई सिस्टम डील करे। तो ये 2 कारण उन्होंने बता दिए, तो मेरे ख्याल से ये है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि आई थिंक कहीं ना कहीं वो बात होती है कि हाँ जी, आई थिंक कॉलर्स बाकी भी आ रहे हैं। अगर पहले अनिल जी की कॉल ले लें, क्योंकि ये ना हो वो कहें जी हमारी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। हाँ जी, हेलो अनिल जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ जी प्लीज़ गो एड। हरपाल जी बोल रहे हैं जी? हाँ जी, तुसी ऑन दे रहो जी। एक सेकंड होल्ड कर लो, अनिल जी की गल का जवाब दे दिया। हरपाल जी तुसी होल्ड कर लो, कॉलर्स रिक्वेस्ट है कि लाइन्स प्लीज होल्ड कर लेना। अनिल जी की गल नूं पहला मैं चाहूँगा गेस्ट एड्रेस कर दें। मेरे मुताबिक वैसे उन्होंने अनिल जी 2 बोल दी हैं बातें। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं रही और फौज हमारे वहाँ पे मुदाखलत करती है। मेरी उर्दू ठीक और अभी भी कर रही है, बिल्कुल, अभी भी कर रही है। सुंदर खूबसूरत अंदाज में आपने मुदाखलत सवाल किया है। सर मैंने उर्दू यहाँ के सीख ली आप लोगों के साथ रह के। हाँ जी, गो हेड। सॉरी इमरान साहब आप हाँ जी बोलिए। सो द थिंग इज, अगर जिस तरह भाई ने पूछा कि हाँ भाई, जिस तरह मतलब जो आपने इंटरप्रेटिंग, जो आपने एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई उनके सवाल का जवाब क्या है, बेसिकली हाँ जी, हमारे यहाँ जो सारा का सारा जितनी भी मतलब हमारे जो इन्फोर्समेंट है वो फौज की है, वो अभी भी है। क्योंकि ये जो मतलब धांधली हुई है, ये फौज के सर पे हुई है। अगर इमरान देखें, पाकिस्तान में इस टाइम यकीन करें, मतलब भुट्टो के टाइम पे एक दफ़ा आवाम निकली थी, जब क्या नाम था उसका, भुट्टो का, जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे निकली थी अवाम, ठीक है। और एग्जैक्टली उस वक्त भी अवाम ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि अगर मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मैं वो कहते थे कि भुट्टो का कुत्ता भी आएगा तो हम उसको वोट दे देंगे। मैं यहाँ पे लोग कहते थे कि इमरान खान कहेगा कि हाँ भाई हम लोग खंबे को वोट देना है ना, हम लोग उसको वोट दे देंगे, ठीक है। इस टाइम इमरान खान बहुत हैवी मैंडेट के साथ आया,
बिलीव मी और नॉट, रात के 8 या 9 बजे तक, जहाँ तक जब तक मैं देख रहा था, ठीक है ना, 10 बजे तक तो वो इमरान खान की पूरी पार्टी जीत रही थी, ठीक है, कहीं से भी वो मतलब हैवी मैंडेट के साथ, ठीक है। और सारे के सारे लोग, अब हमें भी पता चल गया फॉर्म 45 क्या होता है। पहले मुझे नहीं पता था कि फॉर्म 45 क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म 45 जो भी आप लोगों को पता है, आई डोंट वांट टू गो डिबेट ऑन दैट थिंग। अब तो हमें पता लग गया जी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बेसिकली पत्रकार आपके चैनल पर दिखा रहे हैं। सर द थिंग, द प्रॉब्लम इज राइट नाउ कि हमारे जो जर्नैल है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिलीव मी और नॉट, जो भी भाई लोग देख रहे हैं, आई एम नॉट एन एंटी आर्मी पर्सन। मैं यहाँ पे आर्मी को गंदा करने नहीं आया, ठीक है। मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता था, ठीक है। जब से इमरान खान ने शऊर दिया, बिलीव मी और नॉट, फिर वो बात आ जाती है कि मैं एक आपकी आवाज के अंदर ना एक डिफरेंस आ जाता है जब इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिसने आपको शऊर दिया, बच्चे को बताया कि जीना क्या होता है। बिलीव मी और नॉट, पाकिस्तान में पता चला कि हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं यही पूछना चाहता जी, मैं डिफरेंस बिटवीन परवेज मुशरफ एंड इमरान खान। इमरान खान दी 2 ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆંકੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024, 2017 ਤੋਂ 2024 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਾਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ खान साहब ने किया, ये भी दसो यार। यू टर्न देखिए आपकी बात सही है। मैं अब आपने मुझसे पूछा, चले आप दे ले पहले इमरान साहब फिर यू टर्न क्या है? यू टर्न यार बेसिकली यू टर्न किधर से बंदा मारेगा, फिर वही बात आ जाती है। आप एक बंदे को काम करने की देखें, उस जो इमरान का जो मेन काम था, उसने कहा था कि हम लोग जी टैक्स कलेक्ट करें जितना हम लोग कर सकते हैं। उसने करप्शन खत्म नहीं करने की कोशिश की है, ठीक है ना, तो उसने जड़ों को खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है ना। या डेफिनेटली इफ यू आस्क मी कि हाँ भाई उसने कोई तरक्की काम कोई किया या नहीं किया, ठीक है ना, तरक्की याफ्ता जो भी है, या नहीं तरक्की याफ्ता काम जो भी है, सॉरी यार मुझे उर्दू का। सो वो बेसिकली उसमें उसके ज़माने में कुछ नहीं है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकोनॉमी पॉइंट, लेकिन लेट मी पुट ओवर हियर, हॉस्पिटल्स में उसने काम किया है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में काम किया, कॉलेज एजुकेशन में उसने काम किया, ठीक है ना, बिलीव मी और नॉट उसने एजुकेशन में काम किया, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसने अपनी करप्शन को खत्म करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। और बिलीव मी और नॉट, जितने भी लोगों से मैं पाकिस्तान नहीं गया जाता था, सेम लीडर्स वर सेम लीडर्स नहीं यार, सब लोग कहते हैं। अजीजी साहब का व्यू पॉइंट ले लें। अजीजी साहब, मैं आपको ये बात इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंडिया की खास करके आवाम उसको बड़े आसानी से समझेगी। आपने आमिर खान की वो मूवी देखी है लगान? जी। उस लगान मूवी में वो एक मैच में जब फंसा हुआ होता है, तो उसके बाद वो कहता है एक को बुला के कि ये कचरा भी खेलेगा, याद है आपको डायलॉग? पाकिस्तान में आर्मी ने जो पॉलिटिकल सिनेरियो थी उसमें बोला ये कचरा भी खेलेगा। वो कचरा कौन था? वो था इमरान खान। उस कचरे को जब शामिल किया गया है, उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान कंप्लीटली नोज डाउन जा रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत तकलीफदेह बात है और मेजॉरिटी इस बात से एग्री नहीं करती। पाकिस्तान में इस वक्त जो हवा है, पाकिस्तान में जो राय आमा है, जो वेस्ट में राय आमा है, जो खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक आम फहम बात से हटकर बात है। जो शख्स जिसकी कैपेसिटी नहीं थी, जिसने जिंदगी में एक दिन लोअर डिवीजन कलर की नौकरी भी नहीं की थी, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा दिया। कैपेसिटी उसके पास नहीं, टीम उसके पास नहीं, पूरे मुल्क का कचरा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आमिर खान ने कहा था ये कचरा खेलेगा, जहाज भर भर के पूरे मुल्क के पॉलिटिकल पार्टी के वो तमाम लीडर जो पूरे पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में मुंह मार चुके थे, उन सबको जहाज भर भर के लाके इमरान खान की झोली में डाल दिया, इमरान खान को लीडर बना दिया।
वो लीडर उससे पहले इलेक्शन में 5 सीटें नहीं जीता हुआ था। आपने 2/3 के करीब मेजॉरिटी देके उसको और 2-3 उसकी पपिट पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी झोली में देके बैठा दिया। टीम उसके पास कुछ भी नहीं, एक शख्स एक उस काबिल नहीं क्रेडिबल जो कि उसकी कोई भी पॉलिसी को चला। उसका पोस्टर बॉय असद उमर, जिसको कहा कि हमारी पाकिस्तान का मसला क्या है, रोटी का मसला है, इकोनॉमी छोटी सी, खाने वाले बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि मुल्लाओं ने कहा है बच्चे ज़्यादा पैदा करो अल्लाह पालता है, बच्चे पैदा करो अल्लाह पालता है, हमने थोड़ी पालना है, ये तो अल्लाह ताला पालेगा, आपका काम है पैदा करना। तो वो मौलवी ने इस कौम को 25 करोड़ कर दिया है। ठीक है जनाब, हुआ ये कि ये इस कौम के ऊपर जब आपने 24 घंटे दिन रात 50 चैनल के में बैठकर बॉम्बिंग करी और एक शख्स को जिसका नाम था इमरान खान, उसको प्राइम टाइम पे कैमरे के सामने ऐसे बैठा के 24 घंटे 25 करोड़ आवाम को रात दिन बताया कि ये तुम्हारा मसीहा है, ये तुम्हारे मसाइल हल करेगा। कौम वैसे ही आजिज थी बाकी 2 लीडरान से जो कि निकम्मे किस्म के लीडरान थे, जो 25 साल से बैठे हुए, जिन्होंने कोई ख़ास काम करके नहीं दिया। उनको मौके भी, उनको डी रूटेड भी करते रहे, वो अपनी जगह है। मगर जब इसको लाके बैठाया तो आवाम को ये होप थी कि ये एक नया फेस है, ये हीरो है, बेहतरीन तरीके से सीना निकाल के चलता है, 6 फीट इसका कद है, औरतें इसको बहुत पसंद करती हैं, हैंडसम लगता है ये। देखें, बात ये करता है कि अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट, तो ये तो बड़े जानदार आदमी है, तो पूरी दुनिया फतह कर लेगा। काम उसको कक्का नहीं आता था। पीएम बन के कह रहा है मुझे 3 महीने दे दो, मुझे फाइलें पढ़ना, तो 3 महीने बाद आई, मुझे तो फाइलें का नहीं पता था। असद उमर जो कि उनका पोस्टर बॉय था, इकोनॉमीज को दे दी, जो कि शख्स एक MBA फाइनेंस है। सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा, मुझे पता क्या होता है कि MBA फाइनेंस किस तरीके से इकोनॉमी चला सकता है, ये तो पब्लिक अकाउंट्स का काम है। उसने क्या किया, पोस्टर बॉय ने 3 महीने के अंदर पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्रेन कर दिया। जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं चाहता हूं दुनिया भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कैमरे पे पॉइंट कर रहा हूं, जाके गूगल करना शुरू करें, मेरी बात को पेपर पे चेक करें, ये न लगे कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। इमरान खान को जिस दिन हुकूमत दी, उन्होंने पोस्टर बॉय बनाया असद उमर को। असद उमर ने जाके क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी हम अपनी करेंसी डिवैल्यू करेंगे। करेंसी डिवैल्यू होती है ग्रेजुअल लेवल पे, करेंसी डिवैल्यू इन्होंने रातों रात कर दी और उस परसेंटेज से की कि आपका GDP श्रिंक होके $360 बिलियन से 320 पे आ गया। 52 बिलियन, $52 बिलियन का डैमेज दे दिया उसने ओवरनाइट पाकिस्तान को, और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगता फिर रहा है। और उसने कितना ड्रेन किया, 52 बिलियन, गूगल करें सारे लोग, $52 बिलियन ड्रेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इंटरेस्ट रेट और बढ़ाइए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है ये फ्लॉक ऑफ अ बर्ड होता है, जब भी आपकी डोमेस्टिक हालात ज़रा से ख़राब होते हैं वो फॉरेन मनी फॉरेन उड़ जाती है। यही हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर आया तो ज़रूर, मगर वो बिलियंस नहीं, वो मिलियंस की इन्वेस्टमेंट लेकर आया और एक साथ सारी की सारी निकाल के लेके वो हॉट मनी जो आई थी आपके पास, वो इकोनॉमी से फॉरेन चली गई। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, लोकल लोग काम कर नहीं सकते थे, इकोनॉमी ड्रेन कर गई। जितने लोन IMF से लिए थे वो सारे के सारे फ्रंट लोडेड ले लिए, क्योंकि ये जो शख्स था इसको इकोनॉमी का कख नहीं पता था, इसने सारे का सारा प्रोग्राम फ्रंट लोड ले लिया। जो लोग नए हैं, जो इकोनॉमी को नहीं समझते, मैं उनकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं, फ्रंट लोड प्रोग्राम ये होता है कि जितनी अमाउंट आपने लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आप आने वाले महीनों में और अनकरीब पीरियड के अंदर पे करते रहेंगे, ना कि उसको बैक एंड पे लेके जाएंगे। अगर कोई शख्स जिसकी इकोनॉमिक डेप्थ होती वो आता 3 महीने बाद, इसीलिए उससे वो जगह ले ली गई कि उसके बाजुआ को इंटरवीन करना पड़ गया कि भाई ये तो तबाह बर्बाद कर दिया उसने मुल्क, अब ये कैसे रिकवर होगा। वो आज तक नहीं हो सका, वो आज तक हम उस मसले से निकल नहीं सके। ये सबसे बड़ी वजह क्या थी, आपके पास टीम नहीं थी। अगर टीम होती, डिलीवरी होती, तो बात कहाँ से कहाँ जा सकती थी। हमारा मसला इकोनॉमिक मसला था, पाकिस्तान को और मरे हुए को और मार दिया इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। तजुर्बा किसने किया था, आर्मी ने किया था। जो गवर्नमेंट इससे पहले 2018 में 5.8 की रेट के ऊपर ग्रो कर रही थी,
इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही थी, हम 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थे, वहाँ से गिरा के इसने 46 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर लेकर आ गया। जिस शख्स ने लेकर आया उसका नाम था इमरान खान, उसको कौम ने इस तरीके से वोट दे दिया। क्यों दिया? उस आर्मी की फिर बेवकूफ़ी, क्योंकि जब वर्दी पहनता ना वो होता है जाहिल, उसको अकल नहीं होती, उसने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली होती है, मगर वो समझ ये रहा होता है कि वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान है। इन्होंने क्या किया, 2023 की इलेक्शन रिजल्ट जो आए वो तमाम लोगों को वोट डालने का हक दे दिया। यूथ ने सिर्फ लीडर ही एक हीरो देखा था इमरान खान, उसने जाके जो 2 करोड़ नए वोटर थे उसने जाके सारा टर्नओवर ये रेट कर दिया। अगर वो यूथ ये रेट नहीं लेकर आई थी तो इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होते। तो ये वो फेलियर की वजूहात हैं। मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूँ। जी जी जी। लेकिन इमरान साहब को इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान साहब, अली भाई की बात बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अली भाई गलत है, आप भी, लेकिन इस टाइम हीरो कौन है? मुझे एक बात बताएं, किसने बनाया हीरो? इमरान खान को हीरो किसने बनाया? जनरल फैज हमीद ने। नहीं भाईजान, जनरल फैज हमीद ने नहीं बनाया। पाकिस्तान देखें जब बेसिकली इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब उतरी नहीं थी, ठीक है, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरे कैलकुलेशंस हैं, बिल्कुल यू आर राइट, योर कैलकुलेशंस आर एब्सोल्युटली राइट। मैं दो राय बातें ही नहीं कर रहा उसके बारे में कि हाँ भाई आप गलत हैं, ठीक है ना, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट को पूरा हो लेने देते, ठीक है। लोग बंदे रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बिलीव मी ना, आई विश वो खत्म हो जाता है और तो बिलीव मी यकीन जाने, जिस तरह भैया ने कहा है कि जी उसने क्या ऐसी पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट की है कि हाँ भाई कहीं पे जाए, ठीक है ना। जब वो अपनी गवर्नमेंट के तीसरे साल में था, हर बंदा तंग आया हुआ था, ठीक है, हर बंदा, और उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, ठीक, फॉर सम रीजन आई डोंट नो। वो पीडी उन्होंने जो दोबारा एक सारी जमातों को अलग अलायंस करा के तो उनको एक पीडीएम बना के और आगे धकेल दिया। वो इकोनॉमी पहले गिरी हुई थी। मुझे लगा, जो मैं एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी कहीं ना कहीं जब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, हाँ, और शायद ये भी हो सकता था कि वो इलेक्शन हार जाते, पर जिस तरह से उनको वो घसीट के लेके गए पहली बार जब गिरफ्तार किया था, हाँ, तो वो उसके विजुअल जब बाहर आए तो लोग थोड़े से सिंपैथी का जो वेव है, सिंपैथेटिक वेव जो है उनके लिए चली, तो हो सकता है उसका भी असर। और दूसरी चीज जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, जैसे आपने देखिए अजीजी साहब जैसे लोग काफी कम हैं और बड़ी वो खुल के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात की है भाई ने। हाँ, नहीं देखिए वाई मीडिया पे यही है, हम लोग बात करते हैं सारी खुल के, तो उन्होंने बात की बड़ी खुल के कि वो सब सारा बताया। वरना ज्यादातर जो मैं देखता हूँ जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो ज्यादातर इमरान खान साहब के हक में बात करते हैं। इसकी क्या वजह ये भी बताता हूँ आपको। उसकी क्या वजह है वो आप जरूर बताइए, लेकिन कुछ कॉल्स भी ले लें, तो कॉलर्स बड़े इंतजार कर रहे हैं, वो आई एम श्योर उनका फीडबैक लेना जरूरी है। जी नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज स्वागत है। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जदूवीर जी। नमस्कार जी, कौन सा बोले, नाम जरूर जी मैं वासुदेव शर्मा कॉल कर रहा था स्टोनी क्रीक तो। स्टोनी क्रीक तो शर्मा साहब, गो जी मैं एक इन्फॉर्मेशन ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। एक मिनट जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। बिल्कुल जी, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज स्वागत है। कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? नाम जरूर दस। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, नाम कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ जी सर, मैं कमलजीत बोल रहा था मिनाज सर। कमलजीत मिनाज साहब, हाँ जी कमलजीत मिनाज साहब, की कहना चाहोगे जी? देखो पाकिस्तान के मुद्दे पे मैं चलो मैं फेर करूंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਟ ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਲਜੀਤ ਮਿਨਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 10-15 ਮਿੰਟ, ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਮਿਨਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌन सा बोल रहे जी?
ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅhead ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਂਝਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਘਟੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਫੌਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਦਦ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ? मेरा नाम शौकत बनारसी है जी बनारसी साहब प्लीज गो अहेड। शौकत बनारसी साहब, मेरे दो सवाल हैं प्लीज। आपके गेस्टों से। बिल्कुल। कि अगर दौरान हुकूमत वो जहाज को गिरा रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, फिर जब उनको जेल में डाला गया, जब उनको निकाला गया तो उनकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ गई? और उसका जवाब ये है, उसका एक और सवाल दूसरा ये है, जब इलेक्शन खत्म हुए तो इनकी सीटें क्यों ज़्यादा आई, लोगों को बदल लेना चाहिए था। और तीसरा सा कौन सा इनके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बता दें। पूरी इजाज़त है क्रिटिसाइज करने की, हम सुनते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं ये सोच लिया करें कि जवाब क्या है। पॉपुलैरिटी तो इनकी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन पॉपुलैरिटी डेवलप हो गई और इलेक्शन की सीटें ज़्यादा आ गई। गुड क्वेश्चन दीजिए, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ इनकी बातें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है जी, अभी जवाब होता है। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। हाँ जी, एक कॉल और लेके बस फिर सारे जो गेस्ट आए हैं उनसे जरा जवाब लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज पे स्वागत है। Am I lucky to be on the air? That's the last call, but not the least. Okay, yes, yes, yes. Good evening. You are lucky to be on the air. Welcome, Paul साहब. You know, थोड़ा बहुत thank you. You know, you're doing an amazing job, like for the community and for the all listeners. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Jadveer ji, you in the 50s, I'm in the 60s. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੋਏ? नहीं, it has been a case of one step forward and two steps backward, unfortunately. Since my childhood, I haven't seen not a single year ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ they're governed by the army, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ। ਕੌਣ? ਆਵਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨ ਚ ਭਰਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਨ ਦ ਏਅਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਪੀਰੀਅਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੀ पेशेंटली सारी गलबात सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं चाहूँगा कि जी बारी बारी आप लोग जवाब दें। जी प्लीज गो। जो पहला कॉलर साहब थे उन्होंने जो बात की, मैं
बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बड़ी शुस्ता पंजाबी में बात की और मेरी काफ़ी देर से तमाम लोग उर्दू बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं भी मोहब्बत का जवाब उसी मोहब्बत से थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ पंजाबी में जवाब देने की। मुझे आती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मगर मैं उनके लिए स्पेशली जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हम कैसे फॉरवर्ड, आगे क्या रास्ता होगा, आखिर कोई पॉलिटिकल मूव क्यों नहीं ऐसी होती कि हम आर्मी को पीछे ले जाएं। तो उसके लिए एक पंजाबी में शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो हमारे यहाँ भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनके अंदर कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाती। अगर आज की डेट में जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने आगे बढ़कर जो है वो आर्च राइवल थे, पीटीआई, इमरान खान और फजलुर रहमान ये एक दूसरे की नेगेशन है, एक सुबह है तो दूसरी रात है, एक काला है तो दूसरा सफ़ेद है। ये जब आपस में मिलकर आज गुफ्तगू कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर ये कंसेंसस नहीं फॉर्म कर सकती कि जी हम सब बैठेंगे और एक कॉमन एजेंडा होगा, और वो कॉमन एजेंडा ये होगा कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, हमसे जो गलतियां हो गई हैं हम उसके ऊपर नज़र डाल के आगे चलें, और हमें जो हमारी जो इंक्रोच्ड एरियाज़ हैं, जो पॉलिटिकल डोमेन है जो हमसे छीन ली गई है, वो हमें वापस दी जाए। आर्मी अपने बैरक्स में जाए और अपने काम करे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोके। इसके लिए तमाम लोग एक आपस में सर जोड़ के मिल के बैठें, ना सिर्फ ये कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी इस तमाम डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस पाकिस्तान में इस वक्त बिजी हैं उनको सपोर्ट करें, उनको दो कदम और उनको आगे बढ़ाएं इस एजेंडे के लिए। मगर ऐसा कहना आसान है, ऐसा प्रैक्टिकली अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। जिस दिन ये वक्त आ गया कि एक ही ट्रक के ऊपर इमरान खान, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी साहब चढ़ गए, उस दिन फौज अपने रोल में वापस चली जाएगी। मगर फौज को ये मालूम है कि डिवाइड एंड रूल का फार्मूला गोरा बता के गया था आपके हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को कि यही वो तरीका है जिससे कि हुकूमत की जा सकती है। तो वहाँ पर भी जो दूसरे साहब थे उन्होंने कॉल में कहा कि जी आर्मी को कैसे पीछे करें और कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो सर ये कश्मीर का मसला हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी जिंदा रखते हैं, वहाँ पर वो भी वोट लेते हैं, पाकिस्तान के नाम पर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं, किसी एक शख्स ने, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुस्तान का नाम लिया है? आप बताइए, अभी इलेक्शन हुए हैं, एक हफ्ते से हो रहे हैं, आपने हिंदुस्तान का नाम सुना है इलेक्शन के अंदर? कहीं पे किसी शख्स ने लिया हो? हम अपने इलेक्शन में हिंदुस्तान का नाम नहीं लेते, ना हिंदुस्तान को चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, ना कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आई है कि हम आपको कश्मीर दिलाएंगे, हमें वोट दे दो। कोई ऐसी पार्टी नहीं आई है, ना हम इस मौजू पे बात करते हैं। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो लिहाजा ये कहना मुनासिब नहीं है कि हमारे यहाँ हम चूँकि कोई वॉर मॉन्गर हैं या हम कोई कश्मीर के ऊपर बात करते हैं या हमारे यहाँ सियासत इस पे होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल। अच्छा, एक बनारसी साहब ने जो सवाल पूछा था कि ये जो है पॉपुलैरिटी, हाँ, और दो क्वेश्चन को एड्रेस कर दें कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों चलेगी। और आप पहले बताने लगे थे, जैसे अभी इमरान साहब ने, मोहम्मद साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब का नाम सुनते ही जोश आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कि यहाँ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ खेलते हुए, आप भी खेलते हैं उनके साथ, तो उनको इमरान खान साहब के नाम पर जोश आ जाता है। तो उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर नीचे क्यों गई, और ओवरसीज पाकिस्तानीज में इमरान खान साहब इतने पॉपुलर कैसे हैं, इसका जरा बताइए मुझे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब बनेगा ये तमाम उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर रहने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी एवरेज ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा बाशऊर, ज़्यादा वेल अवेयर्ड होते हैं। तो अगर वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान सही है। जनरली स्पीकिंग ये परसेप्शन है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल देता हूँ इसके अंदर। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं ना, वो आम तौर पर या दुनिया भर में जितने भी लोग मुल्क से बाहर किसी डेवलप मुल्क में रह रहे होते हैं, तो वो ज़ाती तौर पे अपने आप को तो ग्रो कर लेते हैं। वो जब अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, यानी वो एकेडमिकली साउंड हो रहे होते हैं या किसी प्रोफेशन में जाके वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं या वो ग्रो करके किसी कंपनी के ओनर बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। क्या ये इस बात की ज़मानत है कि वो सोशल साइंसेस को भी इतनी अच्छे तरीके से जानते हों?
अगर मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं नासा के अंदर रॉकेट भेजता हूं, तो क्या इससे ये बात साबित हो जाती है कि मुझे मालूम है कि ग्रास रूट लेवल पे किस मुल्क के अंदर गुर्बत कितनी है और वो गुर्बत के मसाइल कैसे हल होंगे? मैं तो एक्सक्लूसिव नॉलेज अपने काम की जानता हूँ, यानी मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं एक बहुत अच्छा सर्जन हूँ, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर ज़रूर हो सकता हूँ अपने प्रोफेशन में, क्योंकि मैंने सेल्फ सेंटर्ड हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी, जिस वक्त मैं अपनी मिसाल दे के बात बताता हूँ कि मैं 13 साल की उम्र से पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 13 साल की उम्र से लगा हूँ। आज मेरी ज़िंदगी जो है वो कहाँ आ गई। अली भाई सॉरी, मैं आपको अपने पॉलिटिकल वर्क की बात करें, आप वैसे पाकिस्तान में जब थे तो आप किसको सपोर्ट करते थे? मुझे ये एक बात बताएं। जी मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी सी इरेलेवेंट हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। मैं सिर्फ ये नुक्ता पहले समझा दूँ, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगी मेरी बात से। मैं आपके जवाब सॉरी। तो जो लोग सारी जिंदगी अपने आप को देखते रहे, अपनी ग्रोथ देखते रहे, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, बड़ी गाड़ी, बड़ी टीवी, बड़ी सब कुछ, ये लोग ये चाहते हैं कि ये अचानक से कनेक्ट हो जाएं और इनके बाद जब इनका पेट भर जाए तो ये पॉलिटिकली जाके भी लोगों को बताना शुरू कर दें कि कहाँ पर मसाइल हैं और उसका मसाइल का हल कैसे निकलेगा। ये वो तबका है जो एक्चुअली एक आम पाकिस्तानी शहरी से भी कम ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर नजर रखता है, क्योंकि इसके पास तो फुर्सत ही नहीं है ना सिर्फ अपने आप को देखने की और अपने आप को ग्रो करने की। उससे तो इससे ज्यादा फुर्सत नहीं है। इसने जिंदगी में कभी कोई फिलैंथ्रोपिक ना काम किया होता है, ना ये पॉलिटिकली कभी इन्वॉल्व होता है। एज अ स्टूडेंट लीडर, एज अ कम्युनिटी वर्कर, लोकल बॉडीज के लेवल पे कभी किया हो, कुछ नहीं किया होता। तो ये जितनी कौम यहाँ पर आबाद है, इन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगियों को देखा है, अपनी जिंदगियों को संवारा है। जब ये संवार लेते हैं उसके बाद ये समझते हैं इनका हक बन गया है कि ये पॉलिटिकल डोमेन में जाके सोशल साइंसेस के मामलात के अंदर भी अपनी हिकमत को साबित करें कि ये सबसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है। तो यही वो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। दूसरे ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी खास करके टाइम कैप्सूल में रहते हैं। लास्ट टाइम वो पता नहीं मुल्क कब गए होंगे वापस, ना उनको ग्रास रूट का कुछ पता है। ये एक यूटोपिया में रहते हैं और एक यूफोरिक माइंडसेट लेके चल रहे हैं। इनके जहन में जो जिस तरह से इन्होंने एक हीरोइज्म को फॉलो किया है, वो हीरोइज्म को फॉलो कर रहे हैं। वो ना एजेंडा देख रहे हैं, ना डिलीवरेंस देख रहे हैं। उनको कोई डिलीवरेंस नजर नहीं आती। अभी आपने मोहतरम जवाब आपने सवाल उठाया था कि आप मुझे प्रोग्रेस 2 बता दो तो कल मैं भी वोट दे देता हूँ। तो जो प्रोग्रेस बताने वाले यहाँ जितने भी नॉर्थ अमेरिका में आलिम बैठे हैं, बोलेंगे इमरान खान ने आपको हेल्थ कार्ड दिया, इमरान खान ने लंगर दिए, गरीब खाने बनाए। आप मुझे बताइए कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये काम करता है? ये तो काउंसलर के करने के काम है, पीएम के करने के जो काम है, वो काम जब करने की कोशिश वो करता था उसको कान से पकड़ के सऊदी अरब से बोलते थे यहाँ चले जाओ मलेशिया। वो मलेशिया जाता था दोस्ती करने, सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था। फिर उसके जो है वो MBS को बुलाते थे, MBS की गाड़ी चलाना शुरू हो जाता था, गाड़ी चलाता था, फिर उसको कहता था मुझे पैसे दे दो। MBS पैसे नहीं देता था, वो गंदुम ज़कात के तौर पर दे देता था, वो ज़कात लेकर आ जाता था गंदुम की। उसके बाद फिर जहाज़ में चला जाता था MBS के, और वहीं MBS को गाली देना शुरू कर देता था जहाज़ के अंदर। वो जहाज़ बग हुआ था, MBS को पता चल जाता है कि ये मुझे बैठ के मेरे जहाज़ के अंदर ही मुझे गालियां दे रहा है। वो जहाज़ वहां से वापस ले लेता है, रास्ते से उतार देता है, ये वहां से दूसरे जहाज़ पे आता है। ये प्राइम मिनिस्टर है? कौन है ये शख्स जिसको हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है? बेसिकली अगर मैं सॉरी मैं आपकी अली भाई बात काटता हूँ। अब बेसिकली अली भाई अजीज़ भाई सॉरी कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। आज का सोशल मीडिया, आज के अखबार सारे ये कह रहे हैं कि इमरान इज़ अ केस स्टडी। am I right or wrong? ठीक है, एक केस स्टडी है। और एक केस स्टडी इस सेंस में है कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ पूरा का पूरा मैंडेट ले गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये अच्छा पॉइंट है जी इनका। फिर वही तो पूछ रहे हैं। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं अजीज भाई के साथ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर दूसरे भाई ने भी बात की, कहते हैं कि जी हाँ भाई आप बताएं, ठीक है, मैं लाजवाब हूँ। मैं उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान, मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान फौज को चाहिए था,
मैं अगेन कहूँगा फौज को चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली मैं फिर वहाँ का वहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, कि फौज जो है जहाँ से देखा जाए 70s से जो फौज ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था वही चीज़ इस दफ़ा हुई है। फौज ने औरतों को उठाया, फौज ने कौन सी यार, अगर फौज इतनी अच्छी है, मुझे एक बात बताएं, जो मैं हाई डार्ट फैन एक आंसर दो, तालिब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ TLP ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲ गवर्नमेंट तहरीक लब्बैक। सर जी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, आपने इस चीज़ का जो है जवाब मेरे पास बिल्कुल है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और जिस तरह वो जो भाई ने बताया था कश्मीर का, ठीक है ना, कि कश्मीर का जो भाई ने बताया था, हमारे, मुझे इंडिया का नहीं पता, ठीक है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी फौज अगर साइलेंस कर दी जाए ना, और वो बॉर्डर पे बैठ जाए, पाकिस्तान में काफ़ी हद तक, पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर फौज को क्वाइट कर दिया जाए। मैं आपके सवाल पे जवाब पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझे पूछा कि वो तहरीक लब्बैक को क्या, तहरीक लब्बैक सर जी, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, एक रिस्पेक्टफुली जो भी बड़ी पता है कि छोटी जमात है तरीके, वो पॉलिटिकल भी है भाई के। ये जो एक सवाल है, बहुत उम्दा सवाल इन्होंने किया है कि आप ये बताइए, ये तो एक केस स्टडी है, इमरान खान की कामयाबी, उसकी पॉपुलैरिटी, ये तो एक केस स्टडी है। और इस केस स्टडी का जवाब, मैं हवा में बात नहीं करता, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी को लाया गया, उसके 1 करोड़ 68 लाख यानी 1,68 लाख वोट थे, ठीक है। नून लीग एक दूसरी पार्टी है नवाज शरीफ की, जिसके वोटों की तादाद 1 करोड़ 28 लाख थी। इस वक्त पॉलिटिकल जो आपके पाकिस्तान में 6 करोड़ लिस्टेड वोटर हैं, जिनमें से 2 करोड़ जो अभी शामिल हो गए हैं, 6 करोड़ ने वोट डाले हैं, 12 करोड़ टोटल वोटर हैं। 12 करोड़ वोटर में से इमरान खान को जो वोट मिले हैं आपको, ये मैं आपको 2024 के PTI के वोट बता रहा हूँ, 1 करोड़ 85 लाख। धांधली के बाद मान लेते हैं। ये धांधली कैसे हुई है और ये वोट कैसे लिए, ये भी इसके ऊपर मैं रोशनी डाल देता हूँ कि जिस तरह आपने कहा ना कि ये सीटें इतनी ले ली कैसे, वो तो बंदा जेल में है, पूरे मुल्क में ये आ गए। ये तो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए, बता दिया कि इसी पर आ जाए, नीचे चली गई है, नहीं, वोट नीचे चले गए। साहब मैं समझ गया, मैं चलो वोट चाहे नीचे चले गए, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पाकिस्तान में जब हम सुनते थे तो वहाँ मीडिया में आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं, ठीक है, तो वहाँ मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में देख रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हक में है। लेकिन अब जो नंबर आ गए वहाँ के लोगों ने, मैं अकेले ओवरसीज पाकिस्तानी तो अगर हक में होते तो मैं कहता जी जो आपने बात कह रहे हैं, कभी आपको ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं है। आप यहाँ अमेरिका, यूरोप में, इंग्लैंड में बैठ के, कनाडा में बैठ के पाकिस्तान की जय जय, वो इमरान खान का जय जयकार करी जा रहे हैं, तो ग्राउंड पे तो उनके तो डब्बे खाली निकले, पर डब्बे तो उनके भरे निकले इमरान खान के। वो कैसे हो गया, ग्राउंड पे भी वोटें कैसे पड़े? बिल्कुल, ये बहुत उम्दा सवाल है और ये जरूर आना चाहिए था, ताकि लोगों के जिस में अगर मैं कहूँ तो इस पूरे प्रोग्राम का ये एक जो है ना सबसे एंकर क्वेश्चन है। ये देखिए, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में तमाम लोग इस बात को अच्छे तरह से समझ लें कि फौज में स्प्लिट आई है। इससे पहले एक जनरल आता था जो बोलता था पूरी फौज नीचे, वो मानती थी। जिस वक्त लास्ट टाइम फौज के तमाम टॉप ब्रास ने ये फैसला कर लिया था कि इस पार्टी को हमें आगे लेकर आना है, इसको सपोर्ट करना है, ये थर्ड फोर्स होगी, वो एलिमेंट आज भी फौज में शामिल हैं। ये जो शख्स इस वक्त जिनको हम हाफिज साहब कहते हैं और फौज के सरबराह हैं, ये उस तरीके से फौज के सरबराह नहीं बने हैं और उस कमांड से नहीं आए। यानी जो लोग पाकिस्तानी में, उनके लिए बता दूं कि ये PMA लॉन्ग कोर्स के राउट से जनरल नहीं बने, जिनसे कि पाकिस्तान में तमाम जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बन के हुकूमत में आ जाते हैं। ये आए हैं एक मीडियोकर प्रोग्राम से, जो कि मिडिल कमांड के लिए प्रोग्राम होता है।
जिसमें कि जर्नल इनको खुद शुदर समझते हैं, जर्नल खुद इनको पसंद नहीं करते कि ये शख्स कैसे आ गया यहाँ तक, क्योंकि ये तो डिजर्व ही नहीं करता। इसको तो बनाया गया था मैक्सिमम ब्रिगेडियर लेवल पर रिटायर होने के लिए, ये लेफ्टिनेंट जनरल होके जनरल कैसे बन गया? जनरल असीम मुनीर जो बने, आसिम मुनीर जो प्रोग्राम से आए हैं, ये वाहिद जनरल है पूरे पाकिस्तान की तारीख में, ये दूसरे हैं। मूसा थे वो तो उन्होंने तो ये कोर्स ही नहीं किया होता। जनरल ज्ञानी के बारे में क्या ख्याल है? जब वो पीएम है, वो लॉन्ग कोर्स, हाँ, लेकिन उसने कितनी तबाही की थी? नहीं की थी। मैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की मैं बात बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन के अंदर से लोगों की एक्सेप्टेंस कैसे होती है। तो ये जर्नल जो इस वक्त जर्नल तो जरूर हैं, फौज को डिसिप्लिन के तौर पे इनकी बात माननी जरूर है, मगर नीचे जितनी ब्रास है वो सारी इनके अगेंस्ट है। इसके वजह से ये जो स्प्लिट है, इस वक्त रिटायर्ड फौजी जर्नल सारे के सारे ऑर्गेनाइज तौर पे पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में इमरान खान जेल के अंदर बैठ के तमाम लोगों को सीटें दे रहा है? इमरान खान को पता है क्या इमरान खान इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी है कि उसने ये जितनी सीटें जिताई हैं क्या ग्रास रूट वर्कर को जिताई हैं? इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर जिसको अभी नॉमिनेट किया है वो जनरल का बेटा है। और जनरल, वो आप मेरी बात अयूब खान, वो जनरल का बेटा है, वो जनरल का बेटा जिसके ये जो इस वक्त क्या नाम है इनका जिनको नॉमिनेट किया है? अयूब खान द बेटा, ग्रैंडसन। नहीं, ये इसका नाम क्या है? इसका बना गौहर अयूब के बेटे का नाम क्या है, ये जो अभी इसको नॉमिनेट किया है? मुझे नहीं पता। उमर अयूब, सॉरी, उमर अयूब गौहर अयूब के बेटे हैं। और गौहर अयूब के बारे में मशहूर ये है कि कराची के शहर के अंदर कॉलेज की लड़कियां उठाने के ऊपर इसके ऊपर केस बने हुए हैं। तो जिस कौम के अंदर इस तरह के लोग, यानी ये रिवोल्यूशनरी पार्टी है, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म चाहती है, ये मदीना की रियासत के दावेदार हैं ये लोग। और नाम कौन लेकर आए जो इससे बुरा कोई नाम हो सकता था? ये शख्स क्यू लीग का मेंबर था, क्यू लीग में गया, टाइम गुजारा, फेल हो गया, कुछ नहीं कर सका। ये नून में गया, नून में जाके नाकाम रहा, नून के अंदर बैठा रहा, नून के बाद, नून छोड़ने के बाद ये आया। मैंने आपसे जैसे अर्ज की थी कि पीटीआई सिर्फ जिसे कहते हैं ना कचरा खेलेगा, पीटीआई सिर्फ कचरे को खिलाती है। केपी को देखिए आप, केपी पे वो शख्स जिसके ऊपर शराब खुलेआम लेके घूमना, पाकिस्तान हिंदुस्तान के माशरे में तो इसकी आज़ादी है, उनके यहाँ रिलीजियस बैन नहीं है, मैं पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूँ। ऐसे शख्स को लाया गया जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसका हुलिया देख के ये लगता है कि ये मेडिवल टाइम में कोई जो है वो डुएल लड़ने के लिए जा रहा है, ग्लैडिएटर। ये आज के महज़ब दौर में इस तरह की नॉमिनेशन, ये टीम है आपकी, ये टीम डिलीवर करेगी, ये तब्दील करेगी, ये मदीना बनाएगी। खुदा के वास्ते पाकिस्तान। अच्छा अजीज साहब मेरा आपसे एक सवाल है। चलिए, इमरान खान साहब के बारे में आपने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, बाकी भी अब जरा देख लें, ठीक है। अब बाकी क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, ठीक है, उनके हार्ट का इशू चल ही रहा है। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ठीक है जी, बेटी को मेरी को सबसे फोकस उनका ये लगा हुआ है। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें भी देख लें इनके परिवार की, तीनों जनों की, नवाज शरीफ साहब, उनके भाई की और इनकी डॉटर की। अगर आप तस्वीरें देखें तो मुझे लगता है सारा पाकिस्तान इस एक तस्वीर में, अगर मैंने उसमें इमरान खान साहब भी नहीं डाल रहा, मैं और कोई नहीं डाल रहा, अगर सारा पाकिस्तान एक तस्वीर में मैंने डालना हो तो मैं ये तस्वीर में डाल दूंगा कि ये जो तस्वीर है मैं अगर आपको दिखाऊं जिसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी बेटी मरियम नवाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दो पंजाब का, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि उनकी सियासी पारी नहीं, वो सियासी पारी तो खत्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन साथ साथ उनको ये भी नजर आ रहा है कि उनकी हेल्थ भी अब ठीक नहीं है। तो वो चाहते हैं किसी न किसी तरह मरियम नवाज शरीफ को हम इस्टेब्लिश कर दें, तो उनका फोकस उस पर लगा हुआ है, ठीक है। इधर जो अब ये तस्वीर देखो, ये एक तरफ मरियम नवाज शरीफ है, इनको जी किसी तरह इस्टेब्लिश कर दो, नवाज शरीफ सामने लगाए हुए हैं, और पीछे शहबाज शरीफ साहब पीछे से उनको जी प्रधानमंत्री बना दो। तो ये तो परिवार इस काम में लगा। आप ये देखो कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरे भाई को दे दो, पीछे से मैं बैठ के चलाता रहूंगा। पंजाब जो मेजर सूबा है, बड़ा तो मेजर सूबा है, उसकी जी साहब ऐसे करो, कुर्सी मेरी डॉटर को दे दो, ठीक है जी, और मैं पीछे से बैठ के वो भी मैनेज करता रहूंगा, उनको गाइड करता रहूंगा। और अगर मैं जरदारी साहब की तरफ चली जाऊँ, वो कहते हैं जी बिलावल साहब को प्रधानमंत्री तो नहीं बने, वो तो ख्वाहिश है, चलो उम्र छोटी है। नहीं, जरदारी साहब कहते हैं उम्र छोटी है, वो बाद में ले लेंगे, मुझे सेनेट चेयरमैन दे दो, मुझे नेशनल असेंबली का स्पीकर दे दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरदारी साहब
के बेटे बुलावल साहब कहते हैं जी हमने कैबिनेट में नहीं आना, kabina में नहीं आना, हाँ फादर साहब को प्रेसिडेंट जरूर बना दो। अब दिक्कत ये है कि वो फौज कह रही है कि भाई साहब राष्ट्रपति तो आपको बना देंगे, लेकिन फौज कह रही है कि भाई हमारे हाथ में फिर क्या रहेगा, अगर राष्ट्रपति आपको बना दिया आरिफ अलवी की तरह तो नहीं काम करोगे। और फौज ने भी क्लियर कर दिया है। नहीं, आरिफ अलवी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नहीं, वही तो कह रहा हूं ना, मतलब फौज कह रही है कि वो आरिफ अलवी कभी हाँ कहता कभी ना कहता, इस बार राष्ट्रपति मर्जी का लेना है, उसके हाथ में बड़ा कुछ होता है राष्ट्रपति के हाथ में। वो कह रहे हैं जी हमने फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने हिसाब से लगाना है, फॉरेन मिनिस्टर भी अपने हिसाब से, डिफेंस भी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ओवरऑल मुद्दा खत्म करते हैं और आपसे लेते हैं कि तीनों जो बाकी छोड़ दें आप, बाकी तो तरीके लबाग या अपने जमात इस्लामी वो सब छोड़ दें, वो तो नॉमिनल प्लेयर हैं, 1 सीट 2 सीट 5 सीट की गेम है उनकी। मेन तो ये 3 प्लेयर लगाओ। मैं इमरान खान साहब पे बाद में आ रहा हूँ, 1 सेकंड, इमरान खान साहब पे आ रहा हूँ 1 मिनट। इमरान खान साहब को 1 मिनट के लिए मैंने साइड में किया, क्योंकि बात तो करें कि पावर किसके हाथ में आएगी। देखिए इमरान खान साहब के साथ तो आरिफ अलवी साहब को इसलिए साथ में रखना है फौज ने कि आगे चल के कहीं ना कहीं, मैं उर्दू का फिर शब्द यूज करूंगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ठीक है जी। इमरान खान साहब के साथ आगे चल के मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कहा आरिफ अलवी साहब को भी रखें साथ में, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी अभी क्योंकि देखो बात सीधी है। ये उन्होंने कहा जी बेनजीर भुट्टो को गोलियों से मरवा दिया, अब छोड़ो किसने मरवाया उसको बात खत्म करें। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, लियाकत अली खान साहब का बाग में कत्ल कर दिया, इसको भी गोलियां मारी थी इमरान खान को, बच ये भी गया। ठीक है, अब कह रहे हैं यार बच गया तो अब हीरो बन गया। और बाहर उन्होंने कह दिया कि जी इसको उसके उनके, मैं सुन रहा था बीबीसी इंटरनेशनल पे उनके जो साथी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब को जहर दे देंगे। तो फौज कहती है भैया अगर इसने खुद भी जहर खा लिया तो भी हमारे सर इल्जाम आएगा। तो उनकी तो पूरी प्रोटेक्शन है इमरान खान, हाँ वो तो पूरी अब इमरान खान साहब पे प्रोटेक्शन लगी हुई उनकी। ठीक है, नहीं तो छोड़ो इमरान साहब को, छोड़ो ये जो 3 पार्टियां हैं मैं इस पे कर रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। एक जो पावर में है वो कह रहे हैं मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब, भाई मेरा प्रधानमंत्री पाकिस्तान, ठीक है, और मैं पीछे से बैठ के सियासत चलाऊं, ये इनकी गेम चल रही है। जरदारी साहब राष्ट्रपति, बेटा कल का प्रधानमंत्री, सेनेट चेयर, नेशनल असेंबली स्पीकर, ये सब हमें दे दो। और फौज पीछे से बैठी है, वो कहते हैं ठीक है तुम तो, उन्होंने वर्ड आपने यूज किया, उन्होंने पपड़ यूज किया था, उनका जी ये तो दोनों जरदारी हो गया, शरीफ फैमिली है तो पपट है, हम पीछे बैठ के अपने हिसाब से गेम सेट कर लेंगे। ठीक है, और बाहर अमेरिका से क्या करना है, पैसे कहाँ से लाने हैं नहीं, पैसे वहां से लेके वहीं रख देने, क्या करना है वो हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो इस सूरत हाल को कैसे अजीजी साहब और इमरान साहब, अगेन ये बहुत खूबसूरत सा सवाल आपने कर दिया, और ये जरूर आना चाहिए था। पाकिस्तान के हवाले से अगर सियासत पे बात हो रही तो सिर्फ पीटीआई नहीं डिस्कस होनी चाहिए थी, नून लीग का किरदार और पीपल्स पार्टी के किरदार भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। जी जी, देखिए इमरान खान लाडला बच्चा जरूर था, अब नहीं रहा, मगर लाडला बच्चा एक ही है पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा लाडला है, जो जिलानी की गोद में पला बड़ा, वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ लाडला बच्चा फौज का हमेशा से रहा। जिस वक्त वो जेल में था तो जेल से इमरान खान ने नहीं भेजा था, बाजवा ने भेजा था उसको बाहर। बाजवा फौज को रिप्रेजेंट करता है, पीटीआई को तो नहीं रिप्रेजेंट करता। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे जेल में हो या जेल से बाहर हो, आशीद वार फौजी की उसके ऊपर थी, वापस भी लाए हैं तो फौजी सारे केस माफ करवा के लेकर आए ना। ये डायनेस्टिक पार्टीज जितनी भी हैं पाकिस्तान में, आपने इन 2 के नाम लिए, मैं फजलुर रहमान को बात बताता हूँ। फजलुर रहमान का भाई, उसका बेटा, उसका भतीजा, सारे सरकार में। ANP अवामी नेशनल पार्टी, बाचा खान की पार्टी, गांधी जी को गोद में पालने वाला खिलाने वाला बाचा खान जिसकी पार्टी, सारी डायनेस्टिक पार्टी। वली खान से उठा के देखिए, उसके बाद एमन वली को देखिए, एमन वली से पहले नसीम वली को देखिए, सारे कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टी से आगे बढ़ नहीं सकी। ये सारी चीजें सूट करती हैं आर्मी को। क्यों? क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनसे डील करना इनके लिए निस्बतन आसान है। ये इंडिविजुअल की पार्टी हैं, 2 को पकड़ के सजा देते हैं। पूरी पार्टी नून लीग ग्रास रूट लेवल पे तो वो पार्टी ही नहीं है कभी भी वर्कर। अभी आप देखिए नून लीग कितनी ज़्यादा कंप्लिसेंट हुई थी इस पॉलिटिकल, ये जो भी इस वक्त दंगल मचा हुआ था इलेक्शन का, इसमें आपको नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी। नवाज शरीफ सिर्फ बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि फौजी भाई किसी तरीके से इसको प्राइम मिनिस्टर बना के लेकर आ जाए। इन्होंने वादा किया हुआ, डील ये हुई थी कि वापस लाएंगे, केस खत्म कराएंगे, जहां से तुम्हें उतारा था वहां पर बैठाएंगे, तो बैठाओ, मैंने कुछ नहीं करना। कौम जो है वो कीमे के वाले नान के ऊपर मुझे दोबारा वोट दे देगी। यानी वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सके आगे। यानी हम इमरान खान को क्या बुरा बोलेंगे, नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स तो यानी
25 साल, यानी लोग अब ये मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो इस खानदान की हुकूमत थी, अब मेरे बच्चे जवान हो गए तो इसी खानदान की हुकूमत है, बेहतरी नहीं आई। हम लोग जो कि ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम करते रहे हैं, हमने ये होप में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं कि ये आवाम के लिए काम करतेगी। पता ये चलता है कि ये तो एलीट कल्ट है, ये आपस में मैरिज भी इंटर मैरिजेस करते हैं, और चाहे उनकी ज़बान कोई भी हो, सुबह कोई भी हो, ये आपस में इंटर मैरिजेस करते हैं, और इनके ख़ानदानों में से किसी एक का कनेक्शन फौज से होता है। तो बेसिकली ये 5000 ख़ानदान हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम का 2% बनते हैं। ये इलीट कल्ट पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम PTI हो। इमरान खान भी इलीट कल्ट का हिस्सा है। इमरान खान भी सोने के चम्मच में पैदा हुआ था, सोने के चम्मच में ज़िंदगी भर गुजारी उसने। अगर उसकी माँ कैंसर से नहीं मरी होती तो शौकत खानम भी नहीं मिलता। शौकत खानम बना भी तो नवाज शरीफ ने प्लॉट दिया, 2 दिए, एक की बेचकर दूसरी की ऊपर ज़मीन के ऊपर बनाया। 70 करोड़ मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ के वालिद साहब ने डोनेशन के तौर पे दिए। 1 अरब से ऊपर की इसकी टोटल कॉस्ट थी, 70 करोड़ तो सिर्फ शरीफ बरादरान ने दिए। तो ये सारे आपस में कज़न दोस्त भाई थे। लेकिन बना तो सही नहीं, एक चीज तो है, बना तो सही एब्सोल्युटली। एक पेशावर में बना, और हॉस्पिटल है कहाँ पे हमारे पास? कैंसर का हॉस्पिटल है। इमरान खान को दोनों हाथ से सलाम। एज अ रिफॉर्मिस्ट फॉर एजुकेशन इमरान खान ने जो काम किया, एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटिंग हीरो, इमरान खान को दोनों हाथ से सलाम। जिस शख्स की जो कैपेसिटी होती है, तो क्या आपके ख्याल में उज़ोन बोल्ट को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए? नहीं, मैं अजीज भाई, मेरा कहने का मकसद ये है, जो भाई का भी सवाल था, हमारे पास कौन सी ऐसी पॉलिटिकल जमात है कि जो पाकिस्तान को स्टेबल कर सके? नंबर 1, ठीक है, ना पीपल पार्टी, ना PTI, ना PML नून, ना PML काफ लीग, ना जमात इस्लामी, ना तहरीक लब्बैक। कोई कौन है? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। जी बोलो। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ 2000 ਇੰਡੀਆ ਦੀ 70% ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90%। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੈਟਰ ਸੀ। इमरान खान साहब ने इकोनॉमी तो लेके थोड़े को प्याज लेने दे पैसे नहीं सी, ये किथे गए सर? नहीं, इमरान खान को इसका ब्लेम ना दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, मैं 2017 तो बात कर रहा हूं। नहीं, ये उससे पहले की आप सारी बात कर रहे हैं, 2017 से पहले की। उस वक्त आप सीटो सेंटो के मेंबर थे, आपने अफगान वॉर जीवी थी, आप बच्चा जमहूरा बने हुए थे दुनिया के। अमेरिका आपको पैसे देता था, आप फरावानी से खर्च करते थे। अमेरिका आपको डॉलर देता था, आप खा रहे थे बैठ, बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं किसी सड़क पे लगा देता था, वो कभी किसी चीज के ऊपर लगा देता था, आपको लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। बेसिकली आप खैरात पे पल रहे थे, दूसरे के पैसे पे पल रहे थे। बिल्कुल। जब खैरात बंद हो गई है तो मसला आ गया, घर कैसे चलेगा? और खराज जो बंद हुई है, खराज जेब में भी जाती रही है जी, ठीक है ना। अच्छा सर, जनरल कियानी के जमाने में सबसे ज्यादा बंदे मरे ने। अच्छा, मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो उस वेले एक लेफ्टिनेंट कर्नल सी और एक मेजर सी, ठीक है ना। उन्होंने दे अल्फाज, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स ऑब्वियसली, बट मैं बजाते खुद उन्होंने मैनू क्या कहते, यार इमरान सानू पता है कि हाँ भाई गिलगित बल्तिस्तान वगैरह और जिथे उन्होंने अड्डे ने और जिथे फैक्ट्रियां लगियां ने, सानू ऑर्डर नहीं ने कि असीं उन्होंने मरीए। जनरल कियानी के जमाने च सर, बिलीव मी और नॉट, आर्मी जड़ा बह गई है पाकिस्तान की, ट्रस्ट मी। हाँ, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से एयरफोर्स के एयरपोर्ट को यूज करके वहीं से ड्रोन उड़ाता था, फाटा में जाके मारता। हाँ, चकलाला एयरबेस से उड़ते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल उड़ते सर। अच्छा, कॉल भी ले लिए नाल दिला। नेक्स्ट कॉल जी, चलो भाई, स्वागत है। कौन सा बोल रहे जी? हेलो हेलो ईश्वर जी, अनुराग बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी अनुराग जी, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। प्लीज पूछिए सवाल। हाँ जी, कि पाकिस्तान में देखिए आर्मी की बात हो गई, पाकिस्तान के लीडर्स की बात हो गई, इमरान खान समान लीडर की बात हो गई जो एक नई लहर लेके आए जिनको काफी पढ़े लिखे लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, कि इसके पीछे पैसा कौन लगा रहा है, वहाँ पे कौन सा बिजनेस हाउस है जो कि मेन बेनिफिशियरी है
जिसका कहीं नाम ही नहीं आता है कि वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि हर जगह कैपिटलिस्ट वर्ड होता है जी जी और कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं और अपने हिसाब से पॉलिटिशियन को डील करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्यों नहीं आ पा रही है कि किसी ना किसी का तो बेनिफिट है सरकारें बदलने में लगातार, क्योंकि जनता के हाथ में पावर नहीं आ पा रहा है। ये मुझे मेरा सवाल था। ठीक है, गुड क्वेश्चन अनुराग जी। यूएस पैसा लगा रहा है। यूएस क्यों पैसा लगा रहा है? उसकी वजह क्या है कि इमरान खान जब दौरा करके आया सी अपना उसका की कहते हैं रशिया का दौरा करके आया, उन्होंने को तेल भी मांग के आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैनू तेल भी दियो, मतलब ऑब्वियसली यूक्रेन वार जिस टाइम डिक्लेयर किया। हाँ जी, उन्हें कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटो वॉर। ठीक है, उन्हें क्या शामों पहले नहीं लच गया समझ पूछी गल है। अच्छा तुहानू मजे की गल दसना, ज़ियाउल हक शायद बाकी लोगों को पता ना होवे, साढ़े यहाँ इत्थे ओजड़ी कैंप होया सी। बिल्कुल ओजड़ी कैंप क्यों होया सी? ओजड़ी कैंप इस वास्ते होया सी कि जदों अफगान वॉर डिक्लेयर हुई सी कि जी मतलब असी रशिया के खिलाफ बंद हो गई है और एवरीथिंग इज गुड नाउ, और अमेरिका नूं फिक्र लग गई सी कि जिहड़े असी मिसाइल वगैरह दिते ने सारा कुछ वो इत्थे पहुंचे नहीं ते ये हैन कित्थे? वो इत्थे इन्हां दा मुआयना करन आ रहे सन कि असी तुहाडे डुब्बे दा मुआयना करना है, ऑडिट करन आ रहे सन। ठीक है, ऑडिट करन आ रहे सन, इन्हां ने उत्थे चला छड़े। ये ऐसी मतलब सॉरी टू से ऐसी खबीस कौम है, मतलब आर्मी बिलीव मी ना, कौम पाकिस्तान नहीं कह रहे, आर्मी को कह रहे हैं, ऐसे खबीस लोग ने कि उन्होंने गरीब अवाम को कुचल दिता और जो बेचारे कितने लोग मरे सन। मैं पिंडी सा सर उस वेले I saw that thing by myself, मैं उस वेले बच्चा सा, हालात जादू हो गई है, इतना बुरा हाल है, ऐसी चीज की याद नहीं। ये एक कोल्ड ब्लडेड लोग ने ये पाकिस्तान सर जी फिर वही गल आ गई थोड़े इंडिया आर्मी की इन्नी ज़्यादा गिरफ्त नहीं है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू थोड़ी एटलीस्ट पूरी की पूरी जिन्नी भी टर्म्स होंगी ना गवर्नमेंट पूरी करती है। अज तक मार्शल आते थे थोड़े मुल्क नहीं वेख्या, डिक्टेटरशिप तो थोड़े मुल्क नहीं वेखी। साढ़े इतने 3 साल पूरे नहीं होंगे, 2 साल पूरे नहीं होंगे, बंदा ला छड़ते हैं। ठीक है, अच्छा मैं उस वेले सोच के बैठा सा, देखो मेरी गल सुनो मेरे भरावो सारे, असी इत्थे कैनेडा मतलब कि 280 पीपल 80 नैशनैलिटीज़ ने ओंटारियो बेसिकली सारे रहंदे ने। ठीक है ना, इत्थे गुरुद्वारे भी ने, मंदिर भी ने, मस्जिदा डिफरेंट उसदी हाँ डिफरेंट अलग-अलग कम्युनिटीज दियां ने, कोई शिया हो गया, सुन्नी हो गया। ठीक है, चर्च भी है, अपना जूइश दे सिनेगॉग्स भी ने। अच्छा आज साढ़े इत्थे कंट्रोल है, असी सारे इकट्ठे बह के डिबेट कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरा भाई कहता सी कि कश्मीर, हाँ कश्मीर की है, कश्मीर एक हड्डी है, एक इंडिया ने फौज नहीं दी है, अवाम नहीं दी। नो 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 नो, एक इंडिया ने फौज नहीं दी है तो एक पाकिस्तान की फौज नहीं दी है। हाँ पाकिस्तान की फौज उसका ज्यादा बेनिफिट लै रही है, इंडिया की फौज इतना बेनिफिट नहीं लै रही। ठीक है, जिन्नियां इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान स्पेशली तालिबान क्रिएट किने की? पाकिस्तान ने तालिबान किस तरह क्रिएट की? बिकॉज ऑफ भाई ने क्या बेनिफिशरी कौन है? अमेरिका के थ्रू, अमेरिका के पूरे बजट तो तालिबान क्रिएट हुई सी, वही तालिबान इन्होंने गल पै गई। ठीक है, सानू समय होर जा नहीं दिंदा और अज सानू फीडबैक बहुत वधिया आई है। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया अदा करदा है कि तुसीं इन्नी वधिया फीडबैक दित्ती है। सो इस फीडबैक के कारण असीं वाई मीडिया के उत्ते अरविंद जी कोशिश करांगे बैठ के ना ये बारे डिस्कशन कर लांगे अजीसी साहब नाल, इमरान साहब के नाल और अपने सारे टीम मैंबरस के नाल। सो मोस्ट लाइकली असीं हफ्ते एक अद्धा कोई प्रोग्राम दिन रख लिया करांगे, कोई टाइम रख लिया करांगे और मे बी अजीजी साहब, इमरान साहब इनू लीड करके। एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर वी गो, सॉरी मैं समा खत्म हो रहा, सॉरी सर, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ प्यार से रहो, थैंक यू, अलग रहो, कोई बात नहीं, अपनी आइडेंटिटी मेरी अपनी है। पहले तो मैं ये कहता हूँ ये बना गलत, बिल्कुल सही। पहले दिन से
मौलाना आज़ाद कहते रहे, जो कहते रहे, वो एक एक चीज़ 23 बातें कही थी उन्होंने, 23 Right. वो 23 पॉइंट बाय पॉइंट वक्त के साथ साबित हो गया कि वो सारी चीजें वैसी की वैसी पहले तो बना गलत, अब बन गया है ना, कोई बात नहीं है, प्यार से रह लो, ਪਿਆਰ ਸੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਦੋ आगे बढ़ो, ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ आगे ਨਹੀਂ? बढ़ो। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। our education minister मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद was our first education minister. सर, और वो पाकिस्तान उनके जाने के बाद जो दूसरे आए वो 23 साल रहे, आप तो सिर्फ उनको याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ राधा कृष्णन जी सर, जी, जी, आपके दूसरे 23 इयर्स मुसलमान रहे वहाँ पर। पाकिस्तान दी जनता, प्रॉब्लम नहीं सर जी, पाकिस्तान दी जनता, मेरी आवाज है, पाकिस्तान दी जनता, मैं मेरे तो सब तो ज्यादा दोस्त हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। कश्मीर तो कश्मीर है, वो तो रोटी रोटी का सवाल है ना, फौज की और कुछ नहीं है। मैं सर जी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ आना है, क्यों आना है पाकिस्तान में? किसी कश्मीर से पूछो पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, क्यों आएगा? मैं 98 के कनाडा च आया, मैं कनाडा ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੇ लश ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ, उनके कब्रिस्तान अलग है, वो हमारे साथ मर के दफन भी नहीं होते, पैदाइश से लेकर कब्र तक हर चीज अलग है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਾਈਫ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਣੀ। ਸਰ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਖਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, मतलब मैं कहना होमलेस, वो भी गोल्फ कोर्स चलाएगा, उसकी जरूरत नहीं है कि उन्होंने ड्रैग आउट कर सके। बाजवा ने अपनी बेटी की शादी करी, वो मिठू साहब, आपने नाम सुना होगा, पूरी पंजाब के अंदर उन्होंने जो है वो जमीनें खरीद के वो उनकी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, बेटी को अरबों रुपए का ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। कैसे? कोई पूछने वाला है तो क्या करते हैं ये फौजी बिजनेसमैन, जो टॉप इलीट बिजनेसमैन है, उनसे कनेक्शन बना लेते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, बिजनेसमैन कनेक्ट हो जाता है पॉलिटिशियंस के साथ। तो ये पूरा जो एक इलीट कल्ट का चक्कर है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये 5000 खानदान है बेसिकली, जो कि मिलाम लो के 2-3 लाख 4 लाख लोगों का खानदान है जो बेनिफिट उठा रहा है, ऊपर क्रीम, बाकी सारी नीचे जो अवाम है वो रियाया है, जनता है। पाकिस्तान मर गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, ट्रस्ट मी। अब हल क्या है, आगे कैसे जाना इस पे ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, अरविंद जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਾਲਸ ਹੋਰ ਨਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਾਲਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਨਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ पुरुषोत्तम साहब, लास्ट कॉल लैके सानू रैप अप कर रहे हैं। बेनती है कि होर कॉल्स टैक्नीकल टीम असीं नहीं लवांगे क्योंकि पुरुषोत्तम साहब की कॉल ते रैप अप करांगे और असीं ये वादा करते हैं असीं कर लांगे डिस्कशन कि हर हफ्ते 1 घंटा 1.5 घंटा वाई मीडिया फॉरन पॉलिसी या पोलिटिकल साइंस असीं पाकिस्तान के उत्ते जिहड़ा हफ्ते दे विच जो कुछ हो रहा होएगा इत्थे चैनल वाइज ते जरूर पेश करा करेंगे। पुरुषोत्तम साहब ब्रीफ च रखना जी प्लीज। यू सर गो है जी। मैं प्रोग्राम ज्यादा सुन रहा सीगा, मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੌਂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਔਰ ਮੇਬੀ 200,000 ਪੀਪਲ ਆਰ ਦ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟਸ ਰੂਟਸ, ਦ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਆਫਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਈਏ ਪੈਸੇ। $10 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਆਫਰ ਦੈਟ ਕਿ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵੇਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 21 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ 29 ਫਰਵਰੀ। ਸੋ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਸੈਨੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਧਰੋਂ ਔਰ ਦੋਨੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਕੱਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਅਸਕਰ ਗੋਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਸਕਰ ਗੋਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਏ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਕੌਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੈਨਲ, ਹਾਂ, ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਫ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੁਡ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਲੀਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਚੁਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦ ਪੈਨਲ ਆਲਵੇਜ਼। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਪਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਯਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੌਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮੋਸਟ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇयर आर ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। Biggest South Asian media group, Y Media.